help me welcome the stage new EDCs from Pune, Sanjay and Saroj Sailor. Wow, this is a very special moment, guys, for us. Because you see them on the stage as new EDC, but we have seen them getting started in the business. And I tell you one thing, that from day one, I have seen them, their passion, their dedication, sold out, doing whatever it takes. They never took their eyes away from the dream. Doesn't matter what adversity came. We all go through some adversity, ups and downs in the life. But they never lost their eyes from the dream. So Sanjay and Saroj, we are very, very proud of you. We've been to their one small apartment. I still remember the nice tea and the snacks. Okay. And now, when I see the video, they have a beautiful house. Instead of a scooter, they're in a nice automobiles, not car, automobiles. And not just travel from Pune to Bombay, but they go from Pune to Canada, Pune to Switzerland. Now they're going from Pune to Alaska. Hello? So Sanjay and Saroj, very proud of you. Now, they are grandparents. Oh, by the way, they are young grandparents. Young grandparents. Oh, sorry. Okay. All right. So we're very, very proud of you. And it's a great feeling for us that you chose to commit and build a business that not just inspire your downline, your group, but inspire the entire Brit Worldwide team. So very proud of you guys. And here is Sangeeta. Oh, thank you. Sanjay and Saroj Sailor, we're so proud of you for making a decision to go EDC this year. In that process, you have helped so many people to live a better life. And I know that everybody in this Coliseum will be inspired by your story. And you will definitely touch their heart, and they will make a decision after listening to your story and, of course, all the leaders that, yes, this is the right thing to do, and we are going diamond. That's the song they're going to sing after this event is over. Thank you. All right, Brit team, you ready? Yeah! I'm going to offer this very special plaque to you guys. And I know that, there's a very, very special place in your big home to put at a very special place and look at it and be very proud of that, what you've done, by building this business. So here you go, guys. You all ready? Yes. You all ready? Yes. Okay. Sanjay and Saroj Sailor, EDCs. The only limits to the beauty of hopes and dreams fulfilled tomorrow are the doubts and lack of faith and action today. You have conquered your doubts by actions of faith, resulting in outstanding accomplishments for all to observe. You are a leader by example who can encourage others by earning the rights to say with confidence, if we can overcome, you can overcome. We love you. Bill and Peggy Brit, Free Enterprise Day Celebration 2013. Here you go. Thank you, guys. असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस यस
यस यस, जय महाराष्ट्र। ओ माय गॉड। 1998 इस बिजनेस को हम इंट्रोड्यूस हुए। उस वक्त मैं जॉब करता था अच्छे कंपनी में, अच्छे पोस्ट पे। जब ये बिजनेस देखा, सिर्फ एक रीजन के लिए मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, पैसा। 2001 हम लोग एमरल्ड्स गए इस बिजनेस में पापी पेट के लिए। 2003 हम लोग डायमंड्स गए जमाने को दिखाने के लिए। अभी हम लोग ईडीसी गए आपको दिखाने के लिए। आपके बारे में लोग बातें करेंगे, वो आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं, आप उनका टॉपिक चेंज कर सकते हो। हमने वही डिसीजन लिया। लोग क्या बातें कर रहे हैं हमारे बारे में हमें पता नहीं, हम उनको रोक भी नहीं सकते, लेकिन संजय सरोज शेलार ने हमने ये डिसाइड किया कि ये साल खत्म नहीं होगा जब तक हम ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव डायमंड्स नहीं जाएंगे। दैट्स इट, पीरियड। बचपन से अगर शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्टली स्कूल में आ जाता हूं। क्योंकि स्कूल इसलिए मुझे याद है कि मैं स्टडीज में बिल्कुल अच्छा नहीं था। कॉपी करता था, क्रिकेट खेलता था, पतंग उड़ाता था। घर में अंकल आते थे, पूछते थे संजू तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है। मैं बोलता था अंकल मुझे स्कूल में जाना अच्छा लगता है, स्कूल से वापस आना अच्छा लगता है, बीच में जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। जिस दिन रिजल्ट होता था मम्मी पापा को ऑलरेडी बताती थी संजू को पूछो आज रिजल्ट आया है। तो पापा घूमते रहते थे हॉल में और पूछते थे संजय इधर आ जाओ रिजल्ट बताओ। तो मैं जाके खड़ा होता था, मैं बोलता था पापा देयर इज अ गुड न्यूज, देयर इज अ बैड न्यूज। पापा बोले पहले गुड न्यूज बोलो। मैंने बोला मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया। वो बोले अभी बैड न्यूज बताओ। मैंने बोला गुड न्यूज गलत है। पप्पा बोले अरे अभी तो पास हो जा, अभी तो लोकमत का बिल भी पास हो गया। बाद में नौकरी मार मार के इंजीनियर बनाया। इंजीनियर है कोई? नौकरी के बाद छोकरी, बच्चे बाय डिफॉल्ट। क्या बताएं हम। नौकरी जब लग गई मुझे लगा कि अभी इंजीनियर बन गया हूं, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरा सपना था यजदी मोटरसाइकिल, आजकल तो दिखती भी नहीं, लेकिन उसका जब वो स्टार्ट होती थी, उसका जो फायरिंग होता था, आवाज होता था, पागल पैशन होता था। आई यूज्ड टू गेट मैड अबाउट इट। और जब मैं नौकरी पे लग गया तो मैं क्योंकि पैसे थे नहीं, तो पिताजी ने क्या किया, मैं उस वक्त साइकिल पे जाता था जॉब पे एज अ ट्रेनी इंजीनियर। आई स्टार्टेड माई करियर 450 रुपीज स्टाइपेंड, भारत फौज, पूना, मुंडवा। तो पिताजी को दया आ गई, उन्होंने क्या किया, सेकंड हैंड M50 बजाज का वो लाके खड़ा कर दिया। वो बोले कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम इंजीनियर बन गए हो, तुम कल से ये मोपेड लेके जाओ। मैंने बोला पिताजी आई वैल्यू योर इमोशंस, आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस, लेकिन मैं अगर चलाऊंगा तो यजदी चलाऊंगा, हेलो, मोपेड नहीं चाहिए मुझे। उनका थोड़ा रिस्पेक्ट रखने के लिए कुछ दिन के लिए यूज किया, लेकिन बाद में लिया तो मैंने यजदी मोटरसाइकिल। दोस्तों कहने का मतलब है कि ड्रीम अगर आपके पास है, फैक्ट्स डोंट काउंट। 90% पीपल डाई नेक अप एट द एज 25 बिकॉज दे स्टॉप ड्रीमिंग। लोग पूछते हैं एमवे, नहीं अपना तो बेस्ट चल रहा है, अपने को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हेलो, हमने देखा है लोग कहते हैं कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें बिजनेस की जरूरत नहीं है, अपना तो ठीक ठाक चल रहा है। अरे काय का ठीक ठाक चल रहा है यार। मैं जब भारत फौज में जॉब पे जाता था
मेरा घर जो था, मैं उस वक्त भाड़े पे रहता था, और जो मकान मालिक होते हैं नॉर्मली दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, 11 महीने के बाद। और हमारे मकान मालिक ने क्या किया था, हमारा जो एक रूम था उसमें एक दीवार बनाया था आधा, वो बोला 2 रूम है, अंदर वाला किचन, बाहर वाला हॉल। मैं बोला ठीक है, बाथरूम किधर है? उसने बोला कि ये देखो, ये उसने क्या किया था, ऊपर वो रहता था, स्टेयरकेस के नीचे बाथरूम बनाया था। अभी आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहे? हॉस्टल में खुले खुले बाथरूम, बड़े बड़े नल होते थे, ऐसा मस्त नहाने का मजा आता था। और जब मैं नौकरी करता था, शादी हो गई, तो मुझे वो बाथरूम में ऐसे झुक के नहाना पड़ता। हर रोज अपने आप को गाली देके मैं वो खड्डे में जाता था, वो बाथरूम में जाता था। लोग पूछते कि संजय शेलार, आप मुझे बताओ कि आप एमरल्ड गए, डायमंड गए, ईडीसी भी गए, इतना बढ़िया बिजनेस, कुछ तो हमें बता दो, कुछ तो सीक्रेट, कुछ फॉर्मूला, कुछ ताईद, कुछ लॉकेट, कुछ इंजेक्शन ईडीसी ठकाक, 2-4 तो मैं इधर ही बांट देता। हेलो। और अगर ऐसा इंजेक्शन होता तो पहले डॉक्टर अपने आप को खुद को लगा लेता। भाई लोग, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, ना कि तावीज है, ना कि कोई ऐसे कोई दोरा है, धागा है, कुछ भी नहीं है। मैं लोगों को एक ही जवाब देता हूं, क्या आपका बाथरूम खड्डे में है? और अगर खड्डे में है तो जल्दी ईडीसी जाओगे। मोर स्ट्रगल, मोर विक्ट्री। जितनी ज्यादा तकलीफ है उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा दोस्तों। डरना नहीं, डरना नहीं। लाइफस्टाइल देखा हमारा, इंटरव्यू वीडियो देखा, सन्नाटा क्यों है भाई? ऐसा ही हमको ही सन्नाटा लगता है क्योंकि हमारा खुद का विश्वास नहीं होता है उसके ऊपर। कोरेगांव पार्क एरिया में जैसा हमारा 4000+ स्क्वायर फीट का बढ़िया सा मकान है, रेंज रोवर इवोक। हेलो। मैं जब वो वीडियो चल रहा था, सरोज के साथ मैं बात कर रहा था, मैं बोला कि देखो, आपको याद है कि मेरा यजदी मोटरसाइकिल था, बाद में मैंने वो बेच के काइनेटिक होंडा लिया था, क्यों? वो बोली हाँ लिया तो था, लेकिन क्यों याद नहीं? मैं बोला मुझे याद है, क्योंकि काइनेटिक होंडा में बीच में सिलेंडर बैठता है, और हमारा जब गैस का सिलेंडर टंकी खत्म होता था तो मैं जिस एरिया में रहता था वो गाड़ी निकालता था, खाली टंकी रखता था, उसके ऊपर मेरा बेटा बैठता था छोटा, पीछे मैं बैठता था, पीछे उसके पीछे सरोज और उसके हाथ में हमारी बेटी, और हमारा ये रथ यात्रा केशव नगर मुंडवा से बीबीवाड़ी तक जाता था। उस वक्त हमारा कोई फिल्म नहीं निकाला, उस वक्त कोई हमारा लाइफस्टाइल इंटरव्यू वीडियो नहीं बनाया। हेलो दोस्तों, जब आप तकलीफ में होंगे दुनिया को कोई परवाह नहीं है, जब आप कामयाब होंगे सारी दुनिया कदमों में आ जाएगी। क्या बताएं, हमारा इंट्रोडक्शन कर दिया, हमारे हैंड रेजिंग हो गए, हमारे लिए प्लैक दे दिया इतना ब्यूटीफुल। थैंक्स टू अपलाइन, वी आर सो थैंकफुल टू राज एंड संगीता शाह, यस, फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम यूएस, हमारा हैंड रेजिंग करने के लिए आए। हमारा पहला एफडी हो गया अहमदाबाद में, दूसरा हो गया पूना में, बट हमने सबसे जो बेस्ट हमारा जो स्पीच है वो बचा के रखा है लास्ट एफडी के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारी जो अपलाइन है वो यूएस से आके हमारे बारे में कुछ अच्छे शब्द बोले, हमारा हैंड रेजिंग करे। हेलो, कितने लोग चाहते हैं अपने अपने अपलाइन से ऐसी तारीफ सुनना? एब्सोल्युटली। तो हमारे सारे जो अपलाइन है, डायमंड चेतन एंड विनीता रस्तोगी, साजिद एंड सरवत सैयद, डबल डायमंड्स राज एंड संगीता शाह, कुलीन एंड मीना देसाई, and all the way Kanti and Lata Gala. Great line of sponsorship. We are so proud of them. उन्होंने बोलते बोलते बताया कि हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। अभी ये जो नेटवर्क बढ़ रहा है उसको कैसे रोक सकते? हमारे हाथ में क्या है? अभी हो गए,
हमारी शादी को 27 साल हो गए, 27 ईयर्स। एक बार एक आदमी का शादी का 25th एनिवर्सरी हो गया, तो वो खुशी में वो पार्टी दिया उसने, सब दोस्तों को बुलाया, रिलेटिव्स को बुलाया, पार्टी हो रही थी, मस्त मजा कर रहे थे लोग। तो कोई जाके उसको पूछा कि एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या 25 सालों में एक बार भी आपके दिमाग में कभी झगड़ा करने का ख्याल नहीं आया? सत्ताईस साल। दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, बिकॉज ऑफ एमवे ब्रिट वर्ल्ड वाइड, आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ एंड आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाइफ। सिर्फ ये बिजनेस में हो सकता है, सिर्फ ये बिजनेस में। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। सो मैं उनको यहां पे बुलाना चाहूंगा। सो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग गगनभेदी तालियों से स्वागत करें माय ब्यूटीफुल वाइफ सरोज। नमस्ते। आज बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि हर कोई जो कोर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अपने लाइफ में यही मोमेंट चाहता है कि रॉकी म्यूज़िक के साथ अपने अपलाइन के हाथों में हाथ लेके हैंड रेज करें। हर एक का सपना होता है, हमारा भी था। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि बार बार हम पिन चेंज करें, अपने अपलाइन को बुलाए और वो हमारे हैंड रेज करें और हमारे बारे में कुछ बोले। तो वो मोमेंट जो होता है वो आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि हर एक चाहता है कि ये मोमेंट जब आता है उसके बाद बहुत सारा पैसा भी आता है, बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे साथ हुआ। 98 में हमने इस बिज़नेस की शुरुआत की, तब मुझे कुछ पता नहीं था ये बिज़नेस से हमें क्या क्या मिलेगा, मुझे इस बिज़नेस में क्या करना पड़ेगा, कुछ पता नहीं था। पर हम लोग जो हम अपने पहले लाइफ में थे उसमें ना हमारे पास पैसा था ना टाइम। पैसे के पीछे भाग रहे थे, टाइम नहीं था, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, ना अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे थे। मैं एक जॉइंट फैमिली में थी शादी से पहले। हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, 25 पीपल थे हमारे फैमिली में। इतनी बड़ी फैमिली। मेरे पिताजी टीचर थे और मेरे ससुर जी और सासू माँ वो भी दोनों टीचर थे। वो दोनों एक स्कूल में ही कलीग थे, वो साथ में बच्चों को पढ़ाते थे और बचपन से उन्होंने मुझे देखा है और वो मुझे बचपन से ही बहू करके बुलाते थे, जबकि मुझे बहू का पता भी मतलब बहू क्या होता है वो पता भी नहीं था। तब से वो मुझे बहू बहू बोलते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अपनी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी तो हमेशा के लिए अपनी दोस्ती टिकी रहेगी। और इस तरह से उन्होंने हमारी बचपन में ही शादी तय करके रखी थी, लेकिन हमें पता नहीं था, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा टीचर थे तो बहुत अच्छे संस्कार हमें उन्होंने दिया। हमेशा वो बोलते थे कि जो भी करना अच्छा काम करना, कभी किसी को फंसाना मत। और वो बोलते थे कि हमेशा किसी भी क्षेत्र में जाओगी, किसी भी काम में जाओगी तो कभी ये मत कहना कि मैं नहीं कर सकती, हमेशा ये सोचो कि तुम कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती, ये हमेशा सोचना है। तो बचपन से ये मैंने सीखा था। वो मुझे एक एग्जाम्पल दिया करते थे बिल्ली का। वो बोलते थे कि बिल्ली को कितने भी ऊपर से और कैसे भी फेंको वो कभी गिरती नहीं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। वो हमेशा मुझे बताते थे, तो वो मेरे माइंड में हमेशा था। वो बोलते थे कि तू उस बिल्ली की तरह होनी चाहिए, किसी भी काम में डालो तो आपको आना चाहिए, कभी ना ना मत बोलना। तो इसी तरह से जब हमारी शादी हुई, शादी के बाद शादी से पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद इन्होंने मुझे जॉब करने नहीं दिया। तो मुझे बहुत, गवर्नमेंट जॉब था मेरा, मुझे बहुत गुस्सा आया। पर नई नई दुल्हन होती है तो कुछ गुस्सा नहीं कर सकती। और माँ और बाबूजी ने भी बताया था कि वहाँ जाके अच्छे से रहना, हमारा नाक ठीक से रखना। तो इसीलिए वो मैं चुपचाप बैठी, क्योंकि माँ बाप ने सिखाया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरी इतनी अच्छी जॉब क्यों छुड़वा रहे हो। तो उन्होंने मुझे 2 बातें बताई। एक बताया कि बीवी मेरी सुनेगी बॉस की, ये मुझे पसंद नहीं। तो बीवी मेरी है तो मेरी ही सुननी चाहिए, नहीं तो मैं बोलूँगा इधर उधर जाना तो बॉस से पूछ के आएगी। तो उनको पसंद नहीं था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू जॉब मत करना। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जब थके भागे दोनों घर आएंगे तो किसने किसको चाय देना, इसके ऊपर झगड़ा हो जाएगा।
तो इससे अच्छा है कि मैं थका भागा आऊँगा, तू मुझे चाय दिया करो, उनको चाय बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं कुछ बोली नहीं, मैं घर में बैठी। एक ऐसे ही कपल था, एक ऐसे बंदा था जो एक ऑफिस में काम करता था, और वहाँ पे काम करते टाइम उसको बहुत हमेशा जल्दी होती थी, फटाफट काम निपटा के वो घर जाने की कोशिश करता था। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद वो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसी ऑफिस में बोलता था मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे और प्रमोशन चाहिए। तो उसके कलीग और बॉस बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं, उनको लगता है कि ये लड़का ऐसे क्यों कर रहा है, नया नया शादीशुदा है, घर जाना चाहिए, उसकी बीवी है घर में और राह देख रही होगी। तो उनको समझ में नहीं आता, तो उनको पूछते, चलो हम पूछते कि भैया तेरा ये शादी हुआ है, नई शादी हुई है, तो जल्दी घर जाओ। तो बोलता नहीं, जल्दी घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो भी जॉब करती है और हमारा डिसाइड हो चुका है, जो जल्दी घर आएगा उसने खाना बना के रखना है। तो इन्होंने वो काम पहले ही करके रखा था, और मैं एक हाउसवाइफ बन के रही, लेकिन मुझे हाउसवाइफ बन के रहना नहीं था। 2 बच्चे हुए हमारे, बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, फिर मैंने इनके पीछे पड़ी और एक छोटा सा शॉप मैंने खोला था, वो मैं शॉप चला रही थी। और इसी बीच में हमें ये एमवे बिजनेस मिला। बहुत बिजी थे हम लोग, जैसे मैंने बोला, ना पैसा था ना टाइम। लेकिन इस बिज़नेस में इन्होंने क्या देखा था मुझे पता नहीं, उनको क्या विजन आया था, लेकिन वो बोलते थे कि हम बहुत करोड़पति होंगे, तू मुझे साथ दो, मेरे साथ चलो, मुझे तेरी ज़रूरत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस बिज़नेस में मुझे इनकी क्या ज़रूरत है, क्यों मैं इनके साथ जाऊँ। लेकिन वो एक फंक्शन में आए थे ऐसे ही बॉम्बे में, और वहाँ पे देखा उन्होंने कि सारे कपल इस बिज़नेस में हैं, और उन्होंने बहुत सारे सीडीज़ सुने थे। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं इस बिज़नेस में, उनकी सीडी सुनने के बाद उनको पता चला कि बहुत सारी बड़ी टीम बनानी है, लेकिन उसके पहले हस्बैंड वाइफ ये टीम अगर स्ट्रांग होगी तो बाकी टीम बहुत बढ़िया और फास्ट हो सकती है। तो इसीलिए वो बोलते थे कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप चलो। लेकिन मुझे लगता था कि इनको क्या हुआ है पता नहीं, इतना अच्छा खासा मेरा बिजनेस है। मुझे लगता था शटर बंद पैसा बंद, शटर बंद मैं नहीं कर सकती, पैसा कहाँ से आएगा। ये बोलते थे इस बिज़नेस से बहुत आएगा। तो 2 बातें उन्होंने मुझे बोली, बहुत मुझे कुछ ऐसे हुआ जो उन्होंने बातें बोली। एक बात तो उन्होंने बोला कि देखो तेरे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बहुत है, वो कोई चोरी नहीं कर सकता। तेरे शॉप में हो सकता है कोई चोरी करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी शॉप में 2 लड़कियाँ थी और मुझे लगता था कि मैं उनके ऊपर छोड़ के जाऊँगी तो वो कुछ चोरी करेगी। तो उन्होंने बोला था कि उनको जितना चोरी करना है करने दो, यहाँ का कोई चोरी नहीं कर सकता। तो मुझे कुछ हुआ कि ये ऐसे क्या बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि सरोज मैं पूरी दुनिया के साथ फाइट करूँगा अगर तू मेरे साथ है तो। उस लाइन ने मुझे हिला दिया। मुझे लगा मैं इनके साथ रहूँगी तो ये पूरी दुनिया के साथ फाइट करेंगे तो मैं क्यों नहीं रहूँगी। और फिर उस जोश से मैं उनके साथ गई और ऐसे मीटिंग में आने लगी। फिर मैंने बहुत कुछ सीखना शुरू किया। हम सीडी कैसेट सुनते थे, बुक्स पढ़ने लगी, बहुत सारे बुक्स मैं पढ़ती थी ताकि जो सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सक्सेस राज क्या होते हैं, वो मुझे वहाँ से पता चलने लगा। मैं ऐसे फंक्शन में आने लगी, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं बहुत शाय थी, शॉप में बैठना, लोग आते थे अपना काम करके जाते थे, मैं शॉप में बैठती थी, ज़्यादा कभी किसी से बात नहीं करती थी। और हमारी फैमिली में लड़कियाँ ज़्यादा थी क्योंकि हमारी 6 बहनें, 1 भाई और बाकी कजिन्स सिस्टर्स वगैरह थे। तो हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं आते थे, ज़्यादा कभी किसी से बात नहीं करते थे। तो मैं बहुत शाय थी, मुझे लगता था कि मैं इतना सारा बात नहीं कर पाऊँगी। इन्होंने बोला था कि मैं स्टेज पे कभी नहीं आऊँगी। तो उन्होंने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेज पे आ जाओ, मेरे साथ में खड़ी रहो, हंसने का काम करो, इसके सिवा और ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। तो मुझे बहुत ईजी लगा, हंसने का काम मैं कर सकती हूँ। लेकिन स्टेज पे आने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया। इतने सारे लोगों के सामने मैं उनकी तरफ गुस्से से भी नहीं देख सकती थी क्योंकि फिर से घर जाके झगड़ा होगा, इसलिए कुछ बोली नहीं। क्या बोला मुझे पता नहीं, मैंने माइक उनके हाथ में दिया, फिर भी झगड़ा हुआ। माइक में हाथ क्यों दिया? और आज झगड़ा होता है कि माइक हाथ में दिया तो छोड़ती नहीं है। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हमारा झगड़ा होता है। लेकिन आज मैं इतना ही आपके साथ कहूँगी कि ये ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम की वजह से आज मैं इतने सारे लोगों के साथ बोल सकती हूँ। अदरवाइज मैं एकदम शाय पर्सन थी, कभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ और ये माइक नहीं छोड़ती हूँ।
इसका कारण वही है कि मैंने बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा सीडीज़ मैंने सुने हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मैंने पढ़े हैं। मेरा खुद का लाइब्रेरी था, मेरे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स थे, 1200 या 2000 मेरे लाइब्रेरी में बुक्स थे। लेकिन जो ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के थ्रू जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स बुक्स बताए जाते थे, वो एक भी बुक मेरे लाइब्रेरी में नहीं था। मैंने बहुत बुक्स पढ़े हैं, मुझे पढ़ने की आदत थी क्योंकि मेरी खुद की लाइब्रेरी थी, लेकिन यहाँ आके मैंने जो बुक्स पढ़े उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। ये कॉन्फिडेंस मिला कि हम कर सकते हैं, कितने भी लोग ना बोले, कुछ भी हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम सब कर सकते हैं। ये सारा हमने इस सिस्टम के थ्रू सीखा है। जो हम लोग बोलते, मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि लोग पैसे के पीछे है। भगवान ने जब ये दुनिया बनाई और एक आदमी या ह्यूमन बीइंग बना के छोड़ा, तो उसने इतना पेट दिया और बोला कि इतना सा पेट है, भर के आना। तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों ने बोला इतना सा पेट दिया, अरे इतना बड़ा पेट दो भगवान। तो वो लोगों ने इतना बड़ा पेट मांगा भगवान को, लेकिन भगवान बोला कि ठीक है भैया, इतना सा भर के आ जाओ, फिर इतना बड़ा देता हूँ। आज तक दुनिया कितने सालों से चल रही है, लेकिन एक भी आदमी भगवान के पास नहीं गया इतना पेट दे दो, क्योंकि इतना पेट भरते भरते उसकी नाक में दम आ चुकी है। तो इसी तरह से हर कोई इस पेट के पीछे भागता है, उसके लिए बहुत सारा पैसा कमाता है, खाता रहता है, लेकिन यहाँ पर इतना सा छोटा है ना, उसके खाने की कोई फिक्र ही नहीं करता। क्योंकि उसको अगर खाना मिलेगा जो हमारे सिस्टम से मिलता है, उसके लिए अगर आप फिक्र करेंगे, उसके लिए खाना दोगे, तो मुझे लगता है इस खाने की चिंता हमेशा के लिए चली जाएगी, कभी चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी चिंता करती रहोगे तो पूरी ज़िंदगी भर उसी की चिंता करनी पड़ेगी। तो ये हमने सीखा था और इसीलिए हमने इसकी तरफ ध्यान दिया। हम हमेशा जाते थे, फंक्शंस अटेंड करते थे, हमने कभी ना नहीं बोला, हमने प्रायोरिटी सेट की थी। कभी फंक्शन आता है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लोग बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। जैसे आज एफईडी हुआ, ख़त्म हो जाएगा और एक सेशन होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायमंड जाएंगे, ईडीसी जाएंगे, बड़ा डिसीजन होता है। जैसे बड़ा डिसीजन होता है और एक्शन शुरू होता है, काम शुरू होता है, छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, बड़ा डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए उनको तकलीफ होती है, छोटे छोटे डिसीजन वो नहीं ले पाते और इसीलिए बड़े डिसीजन कंप्लीट नहीं होते। तो हमने छोटे छोटे डिसीजन लिए। जब बड़ा डिसीजन कंप्लीट करना है, जब काम शुरू होता है, जब एक्शन शुरू होती है, तो छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि चैलेंजेस आते हैं, जैसे आज फंक्शन है और अगर किसी का शादी होगा या किसी का अपने बच्चों का बर्थडे होगा, वो छोटा सा डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ जाना है, फंक्शन में जाना है या शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है या अपने बच्चों के बर्थडे मनाने हैं। वो छोटा डिसीजन होता है, वो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। जो हमने वो छोटे छोटे डिसीजन सही लिए। हमने पहला प्रायोरिटी फंक्शन को दिया। हम शादी में जाते थे, लोग बोलते थे कि आपके बच्चों के शादी में कौन आएगा अगर आपके किसी के शादी में नहीं जाएंगे। लेकिन ये बोलते थे कि बड़ा सा गिफ्ट उनको मिल गया तो अटेंडेंस हो गया शादी में। तो हम लोग बाद में जाते थे, पहले जाते थे बड़ा गिफ्ट लेके, और उनको बोलते थे कि उस टाइम हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा एक फंक्शन है। तो बोलते थे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो गिफ्ट लेके बहुत खुश हो जाते थे और हमेशा याद रखते कि आपने वो गिफ्ट दिया था। तो इसी तरह से वो छोटा सा डिसीजन हमने अपने बच्चों के बर्थडे सेकेंड डे मनाए, फर्स्ट डे मनाए। बच्चों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि सेम डे ही मनाना चाहिए, उनको क्या पता होता है कि उनकी हम बर्थडे कौन से दिन है, वो कौन से दिन दुनिया में आया, उसको पता नहीं होता। उसको इतना ही पता होता है कि उसके लिए कुछ सेलिब्रेशन हुआ, उसके लिए केक मिला, उसके लिए कपड़े मिले, खिलौने मिले, वही याद रहता है और कुछ नहीं। ये छोटे छोटे डिसीजन हमने लिए। जैसे हमने ईडीसी जाने का डिसीजन लिया तो बहुत सारे चैलेंजेस जैसे आते वैसे हमारे साथ भी आए, और हम बिलीव करते हैं कि जितने ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे उतना आप समझो कि आपका सक्सेस बहुत करीब आ चुका है। ये हमने देखा है कि भगवान अगर ज़्यादा चैलेंजेस देता है तो इसका मतलब सक्सेस बहुत पास आ रहा है, और उसी टाइम अगर हम छोड़ देंगे तो सब खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से चैलेंजेस आएंगे। मैंने एक पढ़ा था बुक में कि जैसे वो लॉक जो बनता है फैक्ट्री में, वो विदाउट की नहीं बनता, लॉक बन के आता है विथ की।
इसी तरह से जो भी चैलेंजेस आता है उसके ऊपर सॉल्यूशन होता ही है, लेकिन हमें उस सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ेगा। कुछ भी चैलेंज हो उसके ऊपर सॉल्यूशन है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा उस चैलेंजेस के ऊपर। जैसे हमने ईडीसी बनने के बाद ईडीसी का डिसीजन लिया, चैलेंजेस आए, बहुत सारे आए, लेकिन हमें बहुत आदत हो चुकी है वो चैलेंजेस के साथ काम करना। चैलेंजेस आएंगे तो हम और खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है विक्ट्री ज़्यादा होने वाली है, सक्सेस और ज़्यादा मिलने वाला है। तो हमने डिसीजन लिया, तो मेरी बेटी सेकेंड डिलीवरी के लिए मेरे पास आई। तो बहुत बार ऐसे होता था कि किसी भी ऐसे कुछ हमारा क्वालिफिकेशन है या फंक्शन है तो हम अपने मेहमानों को बता देते थे कि ज़रा थोड़ा सा इस पीरियड के लिए आप मत आना, बाद में आना। लेकिन बेटी को कैसे बोल सकते हैं, बेटी को तो मना नहीं कर सकते कि नहीं आना। तो इसीलिए वो जब डिलीवरी के लिए आई तो हमारे 3 महीने क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुके थे, 3 बाकी थे और वो आ गई। लेकिन मैंने एक बात सुनी, कुलीन जी हमेशा बोलते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसी तरह से मेरी बेटी जब आई तो मैं सुबह फटाफट काम करके, छोटे बच्चे को नहला के, वो सारा काम करके, मैं वो जो उसकी बड़ी बेटी है, आप उसको देखेंगे अभी, उसको लेके मैं डेमो के लिए जाती थी। मैं डेमो करती थी होम केयर के, लोग देखते थे उसको, वो मेरी ग्रैंड डॉटर को, और बोलते थे अरे इतनी शार्प लड़की, 2 साल की, इतना बात करती है, खिलाते क्या हो? मैं बोलती थी न्यूट्रलाइट। बस मुझे न्यूट्रलाइट के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लोग उसको देखते थे, न्यूट्रलाइट सुनते थे और मुझे ऑर्डर मिलती थी। दूसरी बात वो पूछते थे ये है कौन? मैं बोलती थी ग्रैंड डॉटर। क्या आप लगती नहीं उसकी नानी, करती क्या हो? आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड। बस तो मैं उसको लेके जाती थी, कौन से भी डेमो करो, लेकिन आर्टिस्ट्री न्यूट्रलाइट का ऑर्डर लेके आती थी, जो वॉल्यूम के लिए बहुत बढ़िया होता था मेरे लिए। तो इसी तरह से मुझे लगा है भगवान अच्छा हुआ मेरी बेटी की डिलीवरी उसी टाइम भेज दिया हमने कि जिस टाइम हमने ईडीसी का डिसीजन लिया था। तो इसी तरह से हमने ईडीसी शिप कंप्लीट कर ली और मेरा बेटा ब्रांड न्यू प्लैटिनम है और वो फिजियोथेरेपिस्ट का लास्ट फाइनल एग्ज़ाम उसने दे चुका है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे चेक तो आपने देखे, हमें चेक आता है ये तो पुरानी बात हो गई, अभी हमारे बच्चों के चेक आने लगे हैं। आप भी सोचो, अभी हमारे बच्चों के चेक आ रहे हैं, तो अभी भी आप सोच रहे हैं, तो आपका सोचना ख़त्म कब होगा पता नहीं, लेकिन जो जिसके बारे में समझता है वही वो काम कर सकता है। तो इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट किया ईडीसी जाने का। और एक हमारा डिसीजन ये था कि हम लोग जब एएलएच जाते हैं तो वहाँ पर पहले डायमंड के लिए कार आती थी, अभी कोच आती है, तो अंदर कुछ कुछ होता था। ईडीसी के लिए कार आती है, तो वहाँ पे एक ड्रीम बन गया कि ईडीसी जाना है। बाद में हमने डॉक्टर ब्राच को देखा, उनके साथ एक आदमी होता है उनकी पर्स पकड़ने के लिए, उनका कैमरा पकड़ने के लिए, बहुत कुछ हुआ। क्या अरे ऐसे अगर बाहर के कंट्री का एक आदमी हमारे लिए काम करे, ऐसे हाथ में पकड़ के नौकर बन के, जिस गोरों ने हमारे ऊपर 150 साल राज किया, वो लोग अगर एमवे करने की वजह से हमारे लिए काम करेंगे तो एमवे क्यों नहीं करना है। सिर्फ एमवे की वजह से हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। मैं इतना ही इनको बोला कि मुझे जितना हो सके उतना लोगों के पास भेजो, मैं सबके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करूंगी, डेमो दिखाऊंगी, प्रोडक्ट शेयर करूंगी, लेकिन मुझे इस तरह के बाहर के कंट्री वाले लोग अपने लिए काम करने के लिए चाहिए। लोग बोलते हैं हमें लोगों के पास जाने के लिए शर्म आती है, पता नहीं क्यों शर्म आती है लोगों को। लोगों के घर जाने में शर्म आती है, लोगों को प्रोडक्ट दिखाने में शर्म आती है। मैंने इनको बोला कि मुझे कुछ शर्म नहीं आती, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को प्रोडक्ट दिखाना, लोगों के घर जाना, लोगों से बातें करना, तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं इतना ही आपको बताऊंगी कि जितना हो सके जितना लोगों के घरों में जाओ, डेमो दिखाओ, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो और प्रोडक्ट दे दो। जैसे हमारी लाइफस्टाइल वैसे लोगों की लाइफस्टाइल होगी तो ज़रूर हमारे लिए वो सारी चीज़ें काम करेगी जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हियर इज माय क्राउन हस्बैंड। थैंक यू। वंडरफुल।
पता है जब शादी की रस्म में वाइफ को लेफ्ट साइड में बिठाते हैं और हस्बैंड को राइट में क्यों बिठाते हैं? अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में सारी जो लायबिलिटीज है वो लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो एसेट्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। हेलो, चेस का गेम पता है? चेस का ये एक गेम ही पूरा हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बेचारा राजा होता है ना, किंग, वो सिर्फ एक घर चल सकता है, इतना ही। रानी किधर भी जाने के लिए फ्री होती है। हमने ईडीसी जाने का डिसीजन लिया, डेफिनेटली नॉट फॉर मनी। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, मनी इज इनफ। कितना पैसा चाहिए? अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज है, सो यू रियली डोंट नॉट मच मनी, यू नो, कितना पैसा चाहिए। लेकिन हमने कुछ एक रीजन बनाया, कुछ लिस्ट बनाया हमारा कि व्हाई वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। नंबर वन, we wanted to prove ourselves. Number one reason. We wanted to be a game changer. We wanted to be a lead dog. हम आगे रहना चाहते हैं, हम आगे रहना चाहते हैं, इसीलिए संजय और सरोज ने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। चैलेंजेस आए बहुत सारे, लोग बदले नहीं है, लोग वैसे ही है। अभी भी लोग छुपते हैं, छुपाते हैं, पता नहीं चलता है एमवे के बारे में सुनने के बाद क्या हो जाता है, आई डोंट नो। अभी भी हाइड एंड सीक का खेल खेलते हैं। संजय शेलार को देखा, लोग गायब। मुझे देख के अभी भी डोंट वरी अबाउट इट। सम पीपल, इसीलिए मैं बोलता हूं कि कुछ वजह ढूंढो, कुछ कारण।